Museum of Art. It's a privilege to have our esteemed Mr. Javed Akhtar Sahab, whose name resonates across generation as a distinguished poet, lyricist, and much more. Tonight, we are delighted to have him to join us for an engaging conversation around ongoing photography exhibition on Raghurai. Please join me in extending a warm welcome to my dear colleague Rubina, our Director and Chief Curator, who will join me on stage to welcome and felicitate Ms. Javed Saab. Javed Saab, please. Hello. Good evening, friends. A very warm welcome to all present here at the Kiran Nada Museum of Art for this special evening. The KNMA, as it is popularly known, opened its doors to the larger public in 2010 and since welcomed one and all to this pioneering philanthropic museum that is dedicated to exhibiting, collecting, and researching primarily modern and art forms without compartmentalizing creative human endeavors. The KNMA collection has been responsive to talents that allude to diverse art forms, painting, sculpture, prints, installation, objects, books, crafts, films, design, architecture models, video, photographs, and much more. As you know, the ongoing exposition is our first major exhibition dedicated to photography, with more than 300 photographs on display, bringing to the larger public an intense and obsessive pursuit by the legendary photographer Raghurai. It has been an amazing experience working on this exhibition with the artist and with Devika Daulat Singh, director of Photo Inc., his gallerist, and also archivist. With Vishaldar, who designed and transformed the spatial layout with me, and my in-house team who worked on this exhibition. Poets and photographers share a common interest in conveying an experience of heightened perception and intensity of looking and feeling. Their abstractions on reality, their capture of fragments and details transform a lived experience into a memorable representation. Personally, for me, it was extremely exhilarating to curate an artistic practice that comes with a breadth of experience, rich and diverse, distilled into an extraordinary vision. It is my absolute pleasure to welcome Javed Akhtar Saab this evening to the KNMA in the presence of Mrs. Kiran Nada, founder and chairperson of KNMA, and amidst artists, friends, visitors, students who have joined here to listen to him. Javed Akhtar Saab needs no introduction. That would be the simplest and most sincere, easy line to begin with. It helps over a versatile persona, a shakhsiyat we all know of. He wears many hats, and that too with elan and ease. In his huge following that we are witnessing this evening, some dote on his role as a social commentator and activist. There are others who admire his poetry and lyrics for songs, many more who have been fans of his script writing and dialogues in films, and many, many more of his sharp wit and wisdom. It would be difficult to sum up the person with such a wholesome appetite for life, its nuances and shades, moods and colors in a few words or paras. He is undoubtedly one of the finest talents India has produced. Married to Shabana Azmi, an equally enchanting and remarkable hasti with a commanding presence, the thirst for artistic and creative pursuits runs in the family much before him and continues beyond his generation. His published books include
Jadunama, Tarkash, Lava, Khwab Ke Gaon Mein, in other words, and his recent Talking Life with Nasreen Munni Kabir, who had earlier done similar books with Javed Saab, such as Talking Songs, Talking Films. He is often seen in Rekta conversations, which I'm sure, like me, many present here would be regularly following. He has written lyrics for films revolving around nation and history, such as Border, Refugee, Lagan, and I think all three won national awards. Other such movies would be Fir Bhi Dil Hai Hindustani, My Name is Khan, Khele Hum Ji Jaan Se, LOC, Kargil, Veer Zara, 1942 A Love Story, Lakshya, Paltan, Panipat, Mohenjo-daro, Rais, Swadesh, Mangal Pandey, Jodha Akbar, 1947, and I can go on and on. His compelling line from the movie Main Azad Hoon, which I must have seen at least 15 times, still echoes and lingers. The lines were, ये वो जमाना है कि तुम आहिस्ता से सच बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा और जोर से झूठ बोलोगे तो सब मान लेंगे. Friends, put your hands together to welcome Padma Shri, Padma Bhushan, Javed Akhtar Saab for being here. We are immensely grateful for your time and for your presence here. I would start by asking him to recite something of his choice to set the mood for the conversation. Javed Saab. Thank you very much. But before that, I think I owe a word of thanks to you for your extremely kind, generous, detailed introduction. You know, generally, when I go somewhere, they start with this, that he doesn't need any introduction. But they don't take any chance. So thank you very much. Poetry तो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी बात करके जरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, फिर बीच में कर लेंगे कहीं. So आप कुछ, if you want to ask something, okay. And I would want that after a certain time, let there be a Q&A from the audience. Absolutely. Also. Yes, that is definitely there. The audience is here for that. I want to start just by, you just had, you're aware of Raghu Rai's works, as we spoke about it. And here is, where is Purvi? Purvi is here. She's Raghu Rai's daughter, who's here in the, who is also an artist. My daughter is your fan also. She's also an artist, yeah. Yes. And I thought that one of the things that resonates with Raghu Rai and you, one is that you belong to the same generation, and you would both have seen India in its transition, you know, and when you were growing up. So I'm certain that there would be, in your formative years, impressions about India. Whether a nation or an individual, there are never transitional periods of the life. Life itself is transitional. Life is a road that is curving all the time. So where would you say that this is the point which is transitional? Because the next step is also transitional, and so was the earlier step. It is constantly in transition. Things keep on changing and becoming different with time. So transition of a nation or an individual is a constant procedure. It's not that I saw transition in my childhood and now there is no transition. It's happening all the time. And even in individuals, I mean, except for dead people and fools, people change. Fools don't. So I have been very lucky. I was, although born in Gwalior, but my parents, both my mother and father, were from Awadh, that is central UP. And it was just a matter of chance that when I had to come out of my mother's womb, she was in Gwalior. That's about all. I have never lived there. I have
memories of that. Perhaps I was a few months old when I was brought back to Lucknow. So my formative years in psychiatry, they believe that by the time you are 8, you are sealed, signed and delivered. Your basic structure is finalized forever. Now you will only add the data. That's all. So that way I can say that I have been brought up and sealed, signed and delivered in Lucknow. My family belongs from there. And sometimes when I look back, I feel like writing a book on that particular street where we live. Kayast families, a couple of Rajas there, our next door neighbor was Raja Sahab Ramkot and so on. And then both the lines of the bungalows had service lanes behind it. So the servants who were living there, वो भी एक फैमिली 4 घरों में काम कर रहे होते हैं, बेटा उस घर में है, माँ वहाँ है. So it means every house knew everything about the other house. तो सबको सबका पता था. The kind of culture I have seen there, I am talking of 50s. If I write about today or if I tell you about today, you will feel that ये वो जो एक होती है ना feel good film, बहुत प्यारी सी मीठी मीठी सिरपी, ये उसकी कहानियां सुना रहे हैं. Life has changed so much कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन था the kind of mixture of culture I have seen. It was almost without any borders. The culture, traditions, relationships, mutual confidence. Then there were 2 families, Christian families, who were in Lucknow since generations, because a girl who was 9 years old or 8 years old must be younger than me. I was 10 or she was 8, or when I was 8 she was 6. Now she lives in Allahabad. Her grandchildren are studying medicine in USA, and she calls me sometimes, and when she talks to me, they are Christian, living in Lucknow. She, till today, that lady speaks pure Lucknowi language. तो वो जो लैंग्वेज थी, जो बोलने का अंदाज था सबका, वो सबका एक ही था, कोई अलग नहीं था. जो ट्रेडिशन थी, जो कल्चर था, वो सबका एक ही जैसा था. अजीब ही तरह की दुनिया थी. उसके बारे में मैं आपको बोलूं तो आपको वाकई लगेगा कि मैं कुछ ऐसी कहानी सुना रहा हूं आपको. I had no idea in my childhood that Holi or Diwali are Hindu festivals. I had no idea. Not that कि उनका भी हम भी मनाते, नहीं. My aunt used to make during Janmashtami. Janmashtami was very important. अवध में अल्टीमेट जो नंबर 1 स्टार डेटी वो कृष्ण है, तो उनका सबसे बड़ा हंगामा. तो जब ये जन्माष्टमी आती थी तो हमारे घर के अंदर का जो वरांडा था, अगर घर के बाहर वाला वरांडा होता तो भी मेरी समझ में जरा सी बात आती, लेकिन अंदर घर के अंदर शी यूज्ड टू मेक अ झांकी फॉर द चिल्ड्रन. इट वाज अ जॉइंट फैमिली, बहुत सारे बच्चे थे. तो उसमें वो ईंट रख के उस पे पेपर चिपका के फिर पेपर पे ब्रिक्स पेंट करना, छोटी छोटी ब्रिक्स पेंट करके, फिर उसमें शी वुड टेक ग्रास एंड डाई इन रेड कलर एंड ग्रीन कलर, पुट इट देयर. फिर वो शक्कर के खिलौने मिलते थे, शुगर, तो उसमें गाय और बछड़े और राधा और कृष्ण, ये सब हम बच्चों के लिए रखा जाता था. मुझे याद है I was a child born in that family after 21 years. It means my first cousin was 21 years older than me. So when I was perhaps 6 or 7, he was 27, 28. And his friends would come on Holi, and ये जो बैचलर लड़के होते हैं उनके कमरे बाहर वाले कमरे दे दिए जाते उन्हें, तो वो वहाँ रहते थे. So his friend would come and he would hide, and they would enter, force entry in his room, catch him from his bathroom where he is hiding and pull him out and throw him the color. And we used to laugh when it used to happen. But when I look back, what I realize that what
distance was between them. आज तो मैं किसी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, मैं तो वो लड़की जो थाली लेके आती है वो एक हेजिटेंट तरीके से मुझसे इजाजत देती है साइलेंटली कि shall I put टीका on your head or not? It's frightening. तो उन्हें तो ध्यान ही नहीं था कोई. तो ये चीजें जो हमने देखी हैं, मैं उसका रिजल्ट आपको बताऊं. I mean, we film people are quite insular. हमें मालूम ही नहीं होता बाहर प्रॉब्लम क्या है. हम अपनी दुनिया. तो one day I got a phone from Ashutosh Gowarikar. The Javed Sahab, I am shooting this picture, Swadesh, in Y. Y is a place somewhere near Mahabaleshwar. It's a historical village. Nana Sahab's Haveli is there. It is in 3 acres. It is some kind of a architectural wonder, so on. Architects from different countries come and see it. And Nana Sahab had made some ghats, Pakka Ghat, mandirs, beautiful temples and so on. So he was shooting in that village, which is perhaps 3-4 hours from Pune. So I flew down to Pune because it was in SOS. Then I took the car and I went. They were shooting. तो मैं वहाँ शूटिंग में बैठ गया. वहाँ शाहरुख ये सब शूटिंग कर रहे. तो हम गप्पे मारते रहे. शाम हो गई. शाम के बाद we went to the hotel which was in Mahabaleshwar. So जब नहाने वाने के बाद Ashutosh came to my room, brought a cassette player. उस जमाने में वो कैसेट होते थे और वो लाके उसने टेबल पे रखा और कैसेट रखा. तो जावेद साहब एक प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया. वो है क्या, day after tomorrow Rahman is going away to England. He is giving music for some theatre and I need the song here. I have to shoot the song here. So he is coming tomorrow morning and we have made one hotel room like a recording theatre and we will record the song tomorrow evening because day after tomorrow he'll leave. तो ये कैसेट है, ट्यून उसने भेज दी है और आप ये गाना लिख दीजिए. तो मैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाना 2-3 घंटे में ही लिखता हूँ. तो मैंने कहा ठीक है लिख देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है. I didn't see any problem at all. Now comes the catch. कहते देखिए वो सिचुएशन क्या है कि यहाँ गांव में रामलीला चल रही है. तो उसमें वो सीन है कि सीता जी अशोक वाटिका में है और रावण आता है और रावण कहता है कि सीता ऐसी क्या बात है राम में जो तुम इतनी पागल हो, उस पे दीवानी हो, क्या खूबी है. और रावण में और सीता में राम पर डिस्कशन होता है. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने वीएचपी के हाथों मेरा मर्डर का परफेक्ट प्लान बना दिया. पागल हो गए तुम. अरे भाई अगर यही था तो तुम मुझे वहां फोन पे बता देते. दिन में मैं तुम्हारे दिन भर साथ में शूटिंग में था, वहां बता देते. तो मैं कोई किताब लाया हूँ ना मेरे पास कोई रेफरेंसेस है मेरे पास. मैं कैसे ये, तुम्हें मालूम है कि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि रावण जो है सीता से राम के बारे में बात कर रहा है. तुम कुछ ख्याल है. मगर ये अपने फिल्म वाले अपनी दुनिया में होते हैं. नहीं जावेद साहब लिख देंगे आप. You will do it, I know it. I generally sleep at 1:32. Whatever writing, reading I do in the night. I was so frightened and so terrorized that I slept at 9:30. And I got up at about 5:36 in the morning. थोड़ा बाहर लाइट थी विंडो से. I saw that cassette player, that cassette, paper, pen, it's all on the table. So I thought, all right, what I'll do, that I'll write a couple of lines. And I told him that I tried, it cannot be done like that. It's a very sensitive, very difficult subject. So I sat down, कि कुछ लिख देता हूँ, दिखाऊंगा देखो ये लिखा. नहीं होता. And the tune was there in the cassette. In a couple of hours, I realized that I have written a complete song. एक लाइन में लिखते वो कंप्लीट हो गया. अब
वो आया तो मैंने कहा भाई ये लिखा मैंने सुनाया, देखा मैं आपसे कहा था आप लिख देंगे, हो गया ना ये, वो रिकॉर्ड भी हो गया, वो रिलीज भी हो गया, वो बहुत चला भी। लेकिन जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ सरप्राइज केम लेटर टू मी। वन डे आई मेट सम जेंटलमैन who was really a scholar of Ramayana, and he knew Sanskrit, knew all the versions and so on. He said, भाई आपने कमाल कर दिया। जी कैसे? नहीं, वो जो आपका गाना है ना, मतलब आपने जो तुलसीदास जी का आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन था वो जिस तरह से गाने में डाल दिया, what do you mean? चले वही तो पूरा जो बात है सीता और रावण की, वो तुलसीदास की तो पूरी है ना वो। Till today I don't know that whether in my childhood I have gone to Ramlila, that's a fact. ये कहीं मेरे सबकॉन्शियस में जाके रह गया था, जो मुझे याद नहीं था, मगर it was in my mind because it's possible. या ये कि जो सोच के तरीका सही था वो यही था, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था बोलने का, बात करने का, या ये था, मुझे नहीं पता, मगर it is really a big सरप्राइज फॉर मी दैट हाउ आई डिड इट। और वो है जो उसमें है रामचरितमानस में। तो जस्ट ये मैंने सुना था या खुद इमेजिन किया, आई हैव नो आइडिया। इसका दूसरा सुनाता हूं आपको। ये सब हमारे ये ताल्लुक जो है वही न्यू हैदराबाद की रोड से, ये आसमान से नहीं आया। एक दिन एक पिक्चर में कर रहा था युगांधर, वो जो युग को चेंज कर दे। तो लक्ष्मीकांत जी की म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, एंड एन चंद्रा वाज द डायरेक्टर। सो व्हेन आई वेंट टू देयर म्यूजिक रूम, तो दे वर सिटिंग देयर, बोथ ऑफ देम, लक्ष्मीकांत का म्यूजिक रूम था, एन चंद्रा भी बैठे थे, एंड दे वर स्लाइटली अनकंफर्टेबल। आइए साहब, हाँ, मैंने कहा भाई क्या ट्यून है? वो ट्यून तो बन गई है, अच्छी है। वो सिचुएशन असल में एक निकल आई थी, पहले तो नहीं थी, लेकिन सोचा हमने कि यहाँ सिचुएशन जी क्या है, नहीं मतलब वो फ्लो में ऐसा है कि वो ऐसा लगा कि यहाँ पर ये हो। तो अब वो कुछ हफ पफ कर रहे हैं, बोल नहीं रहे कि बात क्या है। तो मैं अल्टीमेटली क्या है क्या सिचुएशन, तो बहुत ही रिलेक्टेंटली एंड शायली दे सेड के एक्चुअली वहाँ क्या एक कृष्ण की आरती सोच रहे थे रखने को। तो वो सोच रहे कि ये अब इसको हम बोले क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ट्यून दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, कल परसों मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे ट्यून दे दी। मैं 2 दिन बाद वापस गया। आई सेड जो आपने मुझे ट्यून दी थी वो आरती की ट्यून नहीं है, एक्चुअली वो गाने की ट्यून है। वो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने कुछ ऐड किया है जो ट्यून में नहीं है बाहर एंड में, बिकॉज आरती गोज फॉर अ क्रिस्टेंडो, और वो क्रिस्टेंडो आपकी ट्यून में नहीं था। आप सिर्फ 2 मुखड़े, 1 अंतरा, 2 अंतरे 1 मुखड़ा था, मगर उसमें क्रिस्टेंडो जो एंड में क्लाइमेक्स आना चाहिए वो नहीं। वो क्लाइमेक्स मैंने लिख दिया, और वो मैंने लिखा सिर्फ कृष्ण के नामों से। तो कहने सुनाइए, तो मैंने उन्हें सुनाया, आपको भी सुना देता हूं। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन श्याम मटल बनवारी है, बन कुंज फिरैया सांवरिया नंदलाला कान मुरारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्र धारी है, सब रूप निराले हैं उसके, हर लीला उसकी न्यारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पीताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा, आएगा। तो वो तो बड़े हैरान हो गए, कहले इतने नाम तो हमें नहीं पता, तो आपको कैसे पता? मैं 2 बजे, एक तो मैं लखनऊ का हूं और दूसरे मैं उर्दू पढ़ता हूं, ये नाम मुझे उर्दू से मालूम है। Not many people know just how much Urdu poetry has been written on Krishna और शिव पार्वती, कृष्ण राधा, किसी को पता नहीं।
तो हम तो इन नामों से उर्दू पोइट की वजह से फेमिलियर। तो दिस इज द कल्चर आई कम फ्रॉम। इतनी दिलचस्प बात आपने की है, मुझे अब मन हो रहा है आपको पूछने का कि आप बम्बई कैसे पहुंच गए? मैं ये सर डर रहा था कि पूछिए आप यहाँ क्यों आए। नहीं बम्बई तो ठीक है। देखिए, मैं जब बच्चा था तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेंट मैरीज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे शाम को पूछा उन्होंने कि बेटा आज तुम्हारा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ है सेंट मैरीज में, तो तुम जू चलोगे या फिल्म देखो? तो मैंने डिसाइड किया मैं फिल्म देखूं, और वो फिल्म थी आन, दिलीप कुमार तल सुभाष बकली। तो मैंने तय कर लिया कि मैं बड़े होके दिलीप कुमार बनूंगा। और बहुत दिनों तक मैं कंफ्यूज रहा, इसलिए कि फिर मैंने श्री 420 भी देखी उसी सिंगल डिजिट एज में। उसके बाद मैंने वो भी देखी देवानंद की पिक्चर। तो कंफ्यूजन ये था कि मैं दिलीप कुमार बनूं कि देवानंद बनूं कि राज कपूर बनूं। तो बचपन में ये बहुत कंफ्यूजन से मैं गुजरा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो ये एक्टिंग का ख्याल तो खत्म हो गया व्हेन आई केम इनटू कॉलेज, लेकिन माय इंटरेस्ट इन फिल्म रिमेन्ड। एंड on one hand, I used to watch a lot of films. On the other hand, I was a voracious reader. I was a chain reader. Chain reader means the moment एक नॉवल खत्म हुई दूसरी फौरन, जैसे सिगरेट से सिगरेट जला, ऐसे में नॉवेल्स पढ़ता। तो if you are interested in fiction and cinema, it's a natural desire to imagine that ये नॉवल अगर फिल्म बने तो कैसी लगेगी। And that is how I started fantasizing different novels as films, and I decided that when I do my graduation, उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाके असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, and I'll become a director, and these are the novels that I'm going to make. मैंने अपना राइटर भी, डायलॉग राइटर कौन होगा ये भी तय कर लिया था कॉलेज में। तो मेरे दोस्त कहते थे तुम इतने श्योर हो कि तुम्हें जाके फिल्मी डायरेक्टर बनना है तो तुम ये कॉलेज में भी क्यों, क्या जरूरत है कि तुम ग्रेजुएट? उसका रीजन है ये, उस जमाने में एक आते थे फिल्मी मैगजीन जो होते थे, उनमें एक कॉलम हुआ करता था हर वीकली अगर होता तो उसमें एक पर्सनालिटी पर, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, किसी पे भी कहाँ पैदा हुआ, कौन से साल में पैदा हुआ, बालों का रंग क्या है, आंखों का रंग क्या है, फेवरेट कलर क्या है, खाना फेवरेट क्या है। उसमें ये भी एक होता था तालीम, एजुकेशन। तो अक्सर उसके आगे लिखा होता था उस जमाने में ज्यादातर घर पे ही पाई। तो आई हैड डिसाइडेड कि मेरे आगे ये नहीं लिखा हो ज्यादातर घर पे ही पाई, दे विल हैव टू राइट ग्रेजुएट। तो मैंने ग्रेजुएशन किया एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे। बॉम्बे में I got my first job with Mr. Kamal Oberoi, 50 rupees per month. The second job I got with Mr. S.M. Sagar, जहाँ मैं उनके डायलॉग भी लिखता था। I wrote my first film as a dialogue writer when I was hardly 20, because कॉलेज से सीधा गया था और 100 रुपये महीना पे। फिर then I took a leap and 175 रुपये महीना की जॉब मुझे ब्रिज के साथ मिल गई। then वो भी चली गई। then I was बेरोजगार for quite some time, and then ultimately this is what you call break in film language. I got in 1970 when Mr. Ramesh Sippy gave me a job along with Salim in Sippy Films, and then I was getting 750 rupees per month. I honestly thought that I have made it. अब देखते हैं आगे भी कुछ होगा, मगर हो तो गया। तो that is how it happened. उस वक्त तो बहुत शख्सियत, बहुत से लोग थे वहां पे जो गाने लिखते थे, डायलॉग लिखते थे। जबरदस्त कंपटीशन होगा? नहीं, कंपटीशन तो जरूर था, बहुत टैलेंटेड लोग थे, सॉन्ग राइटर इतने बड़े बड़े, डायलॉग राइटर इतने बड़े बड़े, लेकिन दे वर नॉट पेड वेल। सॉन्ग राइटर तो फिर भी जैसे शायर वायर अच्छे पैसे ले लेते थे, लेकिन ये कि जो
डायलॉग राइटर थे, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, ना उनका नाम मेंशन होता था कहीं, ना उन्हें प्रॉपर पैसा मिलता था. दे वर रियली अंडरमाइंड एंड अंडरएस्टिमेटेड. तो वो मिशन फिर हम दोनों ने शुरू किया, सलीम साहब ने, मैंने, कि आपको हमारा नाम देना पड़ेगा, आपको हमें इतना पैसा. हम तो जब पैसा मांगना शुरू किया तो वी बिकेम अ लाफिंग स्टॉक. आर दे मैड? राइटर्स को इतना पैसा मिलेगा? अच्छा. तो लेकिन हुआ फिर, लड़ के हमने अपना जगह बनाई. उसके बाद पिक्चर भी हमारी बहुत अच्छी चली, एक के बाद एक. वी गेव सम 11-12 सुपर हिट्स इन अ रो. तो फिर अल्टीमेटली हो गया. एनीवे दैट्स गॉन. आप लैंग्वेज पे इतना एम्फेसिस दे रहे थे, अभी जब हम बात कर रहे थे तब भी आपने लैंग्वेज पे बहुत एम्फेसिस किया, और आई थिंक लैंग्वेज इज आल्सो कनेक्टिंग, you know, a connecting thread between films, between poetry, between lyrics, between script writing. आपको क्या लगता है कि I think the audience would like to know कि आपकी क्या राय है कि लैंग्वेज को कल्टीवेट करना, जिस एक एस्थेटिक सेंस से, एक पॉलिटिकल सेंस से, एक बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से लैंग्वेज की खूबसूरती को उभारना जो कहते हैं. देखिए, वर्ड्स आर नॉट थॉट्स, like colors are not paintings, but you make a painting with color, you make a thought with words. How can you think without words? You can feel, you can't think without words. It means the more colors available, more shades available to you, you will be comfortable in giving different shades in the painting. You will be able to give the depth, the kind of depth you want to give, because you have the facility at your palette. The same way, अगर आपके पास बड़ी vocabulary है, तो you can think more clearly. Now again, words are not thoughts. Like bricks are not house, a building, but you make a building with bricks. The same way you make a thought with words. अगर जितने अच्छे वर्ड्स और हर तरह के अवेलेबल होंगे आपके पास, यू विल बी एबल टू थिंक मोर क्लियरली. एंड सम मे बी एट सम स्टेज you can understand what you mean, but you don't have the words. Then how will you communicate to others? आप तो समझ रहे हैं instinctively, दूसरा कैसे समझेगा अगर आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है? तो वोकेबलरी आपकी रिच हो इन एनी लैंग्वेज, वो बहुत जरूरी है. हुआ ये है कि इन लास्ट 40-50 ईयर हमारा ध्यान कुछ चीजों से हट गया, बिकॉज ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नेक्स्ट जनरेशन आई, दे थॉट दैट देयर peers or their seniors or their parents were slightly naive people who were idealists. They were not that practical. Perhaps even the parents had this guilt that we have been too idealist. हुआ ये कि जैसे देखिए जो फ्यूडल सोसाइटी होती है उसमें जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा. मुंशी का बेटा कितना भी ब्राइट हो वो जमींदार नहीं बन जाएगा. तो status quo is decided, but once feudal society legally and socially was removed or at least rejected, if not totally removed, then average person became ambitious because now there is a possibility to become anything. ये possibility आपको ये बताती है कि हम क्या नहीं बन सके इतने दिनों. इसका एक opposite side भी है कॉइन का. तो बच्चों को इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस में जाएं, दिस वाज द क्राइटेरिया. और इंजीनियर भी सुनिए कमाल है, सिविल इंजीनियर. वो बच्चा बोले मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना, तो माँ बाप डिसअपॉइंट होते थे, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग में पैसा ज्यादा खाया जा सकता है. ये रियलिटी है. तो इस जब ये एम्बिशन था एल्डर्स का भी और बच्चे का भी, तो जो चीजें बैंकेबल नहीं है, जिनको आप बैंक में नहीं डाल सकते, वो बेकार हैं, उन पे अभी ध्यान मत दो. तुम उस लाइन में जाओ, उस प्रोफेशन में जाओ, वो एजुकेशन हासिल करो दैट कैन टर्न इनटू करेंसी.
तो लिटरेचर का क्या करेंगे, म्यूजिक का क्या करेंगे, क्लासिकल आर्ट्स का क्या करेंगे? दे कांट बी कैश्ड। ये मार्जिनलाइज हो गए। और इनमें ज्यादा जो आदमी इंटरेस्ट ले तो माँ बाप को लगता था बच्चा बिगड़ गया। ये रियलिटी है। हमने जो लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को इग्नोर किया, हमारे बच्चों को। और इसमें मेरी जनरेशन का बहुत पाप है कि हमारे बच्चों को हमारे क्लासिकल आर्ट्स के बारे में, हमारे फोक म्यूजिक के बारे में, हमारी फोक स्टोरीज के बारे में क्या मालूम? कुछ 99% जो एफुलेंट क्लासेस हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, एनीवेयर, जो अमीर लोग, उनके घर में जो किताबें हैं वो उनका इंटीरियर डेकोरेटर लाया है। It's a fact. It's a reality. I have seen in so many houses, आज से 10 साल 15 साल पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के इतने वॉल्यूम याद क्यों रखे? Then I realized वो जो ब्राउन फर्नीचर होता है, डार्क ब्राउन, उससे मैच करते वो लेदर का कवर होता है उसका, तो मैच करते। फिर आप कर्टन्स आपके ब्लू हैं, तो अगर आप इसकी अपना रीडर डाइजेस्ट की कोई भी सीरियल जिसमें उस स्पाइन जो है ब्लू है, वो ले लिए यहाँ से वहां तक, तो मैच करती है कर्टन। अब इट मे साउंड absurd when I am pointing out, but this is the reality of the next generation. तो अब मैं देखता हूं यंगर जनरेशन में कि देयर इज अ क्वेस्ट। यू सी, हमारे लिए तो क्या बड़ी बात थी। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ यंग मैन, मैं सोचता था कि भले मैं बंबई में घर नहीं खरीद पाऊं, बट आई हैव टू बाय अ कार बिकॉज व्हेन आई डाई मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि ही ओन्ड अ कार आल्सो। ये रियलिटी, इट वाज सो फार फ्रॉम अस। अच्छा, जब घर बनाया मैंने पहली बार, आई अपोलोजाइज, अब मेरा घर ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार घर बनाया था तो वॉल टू वॉल कारपेट, दिस वाज अ स्टेटस सिंबल कि आप क्या जो लिविंग रूम में वॉल टू वॉल कारपेट है कि नहीं, और वॉल टू वॉल ही उसे बोलते थे। अरे भाई, बॉम्बे में क्यों रख रहे हो वॉल टू वॉल कारपेट? इतनी ह्यूमिडिटी होती है और रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब जो गरीबी में और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हमारे बचपन में सोच भी नहीं सकता था कार। मिडिल क्लास के पास कार थोड़ी होती थी, वो तो बहुत अमीर लोग थे उनके पास कार होती थी। ये तो पूरा तांगा अलग ले लेते थे कभी, तो वही बहुत बड़ी बात होती थी, वरना तांगा भी शेयर करते थे दूसरों से। तो ये जो मटीरियलिस्टिक एम्बिशंस थे, उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे ट्रेडिशंस को, सबको कोने कर दिया। और हमने एक ऐसी जनरेशन पैदा की जिसको हमने, जो हमारे माँ बाप ने हमें फिर भी सिखा दिया था, कुछ हमने नहीं सिखाया। और आज मैं बच्चे देखता हूँ बिटवीन 20 and 30, they are trying to find it on their own, no thanks to us. तो they know that they have lost something. हमारे माँ बाप जल्दी में ग्रेवी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कुछ बैगेज स्टेशन पे छोड़ा है, वो कहाँ है भैया, मिसिंग बैगेज, वो ढूंढो। तो they are looking for it. So I am not pessimistic about the future. I think this generation जो आज young लोग हैं, they are much better people than us. I have applause for all the young generations. I agree with you on this. I totally agree with you. वो ढूंढ रहे हैं, वो अपनी तलाश में है। और कई बार मैं ये भी सुनती हूँ उनसे कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, पैसा कम होगा चल जाएगा, बट कुछ चाहिए जिंदगी में। तुम ज्यादा ये पैसों को अंडरमाइन भी मत करो। ये सब मेरी बातें सुन के गलत रास्ते पर चली जाना। पैसा भी बहुत जरूरी है, वो भी है, वो भी है, बट भी नॉट ही। पर मेरा सवाल थोड़ा और भी डीपर है। एक कि जब मैं स्टूडेंट थी, सो वी यूज्ड टू स्टडी नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में पढ़ाया जाता था कि ड्रामा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड पोइट्री इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, और हमें समझाया जाता था कि दिस इज बिकॉज इफ यू ड्रॉ डायग्राम ऑफ मीन्स टू एंड्स, ओके,
कि आपका मीन या प्रोसेस ये है और एंड ये है. ओके, तो जब आप एक हायरार्की में जाते हैं तो स्किल्स ऐसी होती, लोअर स्किल्स में आपको आसान होता है स्टेप बाय स्टेप लीनियरली उस प्रोसेस को डिफाइन करना. लेकिन जब पोइट्री की बात आती है विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वहां पे आपको सारी डिक्शनरी के अल्फाज क्यों ना आ जाए, आपकी पेन स्याही से क्यों ना भरी हो, आपकी कलम तैयार हो, आपका कागज तैयार हो, लेकिन आप पोइट्री नहीं लिख सकते. और कई बार ये लीनियर प्रोसेस भी नहीं है, एंड मालूम ही नहीं होता, एंड बाद में आता है. ओके, पोइट्री हो जाती उसके बाद. अब इस in this situation I found it very interesting that if I was to teach a student, being a teacher for so many years, मेरे लिए हमेशा ही कश्मकश थी that yes you learn to use words, learn to express through words. तो वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि एक लीनियर मेथड नहीं डिफाइन हो रहा है, जैसे किसी क्राफ्ट में हो सकता है या कोई स्किल बेस्ड काम में हो सकता है. ओके, तो आप क्या करेंगे, वो पोइट्री तक उस बच्चे को वो मीन से एंड तक ले जाना. और आपने एक बात बहुत अच्छी कही यहाँ पे कि वोकैबुलरी क्या करती है, तो ये बात तो समझ में आई. लेकिन जो बात रह गई वो ये थी कि वो जो एक्सप्रेशन का पार्ट है उसका सेंसिटाइजेशन कहो या उसका फैसिलिटेशन या उसका प्रोसेस, ये एक मेरे जहन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आर्ट्स में जुड़ी हुई है कि आपके बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्किल सिखाई जा सकती है, एक्सप्रेशन नहीं सिखाया जा रहा है, या नहीं सिखाया जा सकता या नहीं सिखाया जा रहा. मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी इसके बारे में, बिकॉज आप हमेशा ये क्रिएटिव स्पार्क आता होगा जब आप पोइट्री लिखते होंगे. जब आप एक शायरी लिखते हैं तो आपको जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ ये बन गई या ये हो गई. ये कैसे, मुझे ये क्रिएटिव प्रोसेस थोड़ा सा जानना था. आप क्या इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका सेंसिटाइजेशन कैसे हो सकता है? देखिए, पहले तो ये कहना कि पोइट्री इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, आई डिसएग्री विद दैट. नहीं, वो तो भारत I'll tell you. नहीं, I can disagree with नाट्य शास्त्र. Of course. I disagree with all the holy books of the world. Absolutely. ये क्या है नाट्य शास्त्र है? वो कोई बात नहीं. हाँ जी. Most of the poetry in the world is mediocre and emulative and some kind of imitation of some other poet. That's true. That is hardly creativity. Most of the paintings are mediocre. There are most of the photographs are मुझे हर आदमी रघुराय थोड़ी है. तो ऐसे ही हर आदमी माइकल एंजेलो भी नहीं है और पिकासो भी नहीं है और गालिब भी नहीं है. वो एक्सीलेंस जो है एक दूसरी चीज है, और एक्सीलेंस किसी भी चीज में हो वो कमाल है, कोई भी चीज. एक तो हमने ये क्रिएटिविटी एक लिस्ट बना के आर्ट्स की ये है क्रिएटिविटी, और बाकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं. गलत. I think Henry Ford was a creative person when he decided to put the automobile on a conveyor belt. जो काम नहीं हुआ है, जो किसी ने कभी नहीं किया, जब आपने वो किया तो क्रिएट किया. और अगर if you are doing something which has been done 10 times, तो where is the creativity? It's a imitation, maybe a good imitation. That's not the point. Now, what is the process of creation? First of all, psychiatry believes that the very desire to be creative or to create something belongs and depends and has its foundation in a ill-adjusted personality. अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और एवरीथिंग इज परफेक्ट आपके अंदर, आप क्रिएटिव क्यों क्रिएट करना क्यों चाहेंगे? The very desire of wanting to create something means you are missing something. You are not satisfied. There is an element of dissatisfaction in you. You are not totally well-adjusted person. एक नॉर्मल भला सा आदमी जो है, जो कि एडिसन के पड़ोस में रहता था, he would think यार ये जो लैंड मिल रहा है ये खरीद लूं तो अच्छा है, बिकॉज बराबर में हाईवे बनने वाला है, इस लैंड की प्राइस बढ़ जाएगी. That's a real, practical, sensible thinking.
Next door, Mr. Thomas Edison is thinking, yaar, how to capture the sound. Now, this very desire is a mad desire. To make a desire to make a gramophone is based on some kind of a mad fantasy. He turned that fantasy into a reality. Hats off. मगर ये आपको डिजायर आया कैसे कि मैं साउंड कैप्चर करूं? आप जमीन क्यों नहीं खरीदना है जितनी सस्ती मिल रही है? ये हकीकत है. आप बैठे होते हैं, देखो ये लड़की, ये भी सॉन्ग राइटर है, मेरे पेट पे लात मारने आई है बॉम्बे. तो आप बैठे हैं गर्मी में, और बॉम्बे में गर्मी काफी सीरियस होती है अगर आपका एयर कंडीशनर या फैन फेल हो जाए, और आप लिख रहे हैं चांदनी रातें. ये आप कैसे कर रहे हैं? आप फैंटेसाइज कर रहे हैं चांदनी रात, और बैठे हुए हैं गर्मी में, पसीना बह रहा है आपके. इट हैपन्स. ऐसा थोड़ी है कि जो आप लिख रहे हैं वही आप उस वक्त आप उस दुनिया में, ऐसा नहीं. यू टेक योरसेल्फ देयर, यू फैंटेसाइज, यू आर नॉट कंप्लीटली इन रियलिटी ऑल द टाइम. और ये जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है कि भाई इसको चांदनी नहीं है, आपने इसे सस्पेंड किया. इट नीड्स सम काइंड ऑफ मैडनेस इन यू कि आपने बिलीव कर लिया यही है. तो नाउ इज इट ओनली दैट? नो, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. है क्या कि एवरी आर्ट, वेदर इट इज पोइट्री और पेंटिंग, फोटोग्राफी और म्यूजिक और राग रागनी, व्हाटएवर, they have two things. One is passion, imagination, fantasy, romanticism. On the other hand, technique, craft. Now they are not, they are moving in opposite direction. They are not compatible. This is surgical. This is logical, cold logic. This is total forgetfulness, madness. Both of them have to work together in an artist's mind. These opposite things, ostensibly incompatible. A man is told that you are a prince of Denmark, and do you know what is your weakness? You can't make up your mind to be or not to be. That's the question. Okay, fine. So he can only act if he believes that he is the prince and who cannot make up his mind. He internalizes this fact. On the other hand, director has told him that that is the question पे तुम वो चौक पाक है उस पे आ जाना and take that light on your face. If he remembers the chalk mark, then he doesn't believe that he is Prince of Denmark. If he believes he is Prince of Denmark, he should not remember the chalk mark. But he is doing both the things together. Now this is physical, so you can see that. But this is true of a painter. This is true of a poet. That there are two things. On one side of his personality is crass person. वो cold-bloodedly, calculatedly देख रहा है और उससे करेक्ट कर रहा है. नहीं, ये देखो ये आउट ऑफ मीटर जाएगा. ये नहीं, ये लाइन जो तुम ये लाइन यहाँ यूज कर रहे हो ना, यू वोंट बी एबल टू राइट द सेकंड लाइन. ये बात कंप्लीट हो जाएगी. इसे यहाँ कंप्लीट मत होने दो, इसे छोड़ दो, सेकंड लाइन में होगी कंप्लीट, यहाँ अधूरी रखो. ये इधर से बोल रहा है. दूसरी तरफ वही आदमी, उसकी आंखों से आंसू बह रहा है और वो लिख रहा है रोता हुआ उस पोएम को. ये ड्यूअल पर्सनालिटी क्रिएटिव इंसान में होती है. ये जो आपको दे रहा है, तो इट मीन देयर आर टू माइंड्स विद इन अ माइंड. यस, इट्स ट्रू. Your conscious mind is not the only mind we have. Your conscious mind is like your living room cum office. मगर अंदर there are lot of attics, basements, ante rooms, bedrooms, guest rooms. अंदर है. अंदर जो आपको अपने घर में जो एटिक में क्या पड़ा हुआ है या बेसमेंट में क्या पड़ा हुआ है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें कचरा हर चीज डाल देते हैं. एक अलमारी होती है, उसमें रख देते हैं. आपको मालूम नहीं उसके अंदर क्या क्या है. एक घर में तो
ब्रेन जो है वो तो घर से बहुत बड़ा होता है. An average human brain has 10 billion neurons, and an average neuron is connected with at least 25,000 neurons. उसमें क्या क्या पड़ा है आपको पता ही नहीं है. एक्चुअली तो आपकी जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन और फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सबकॉन्शियस के पास. ये तो काम चला हुआ है बाहर का. आइए भाई साहब बैठिए, कैसे है, सब ठीक है, इतना है कॉन्शियस माइंड. बाकी तो सब उधर है. एंड इट इज नॉट ऑन योर बैक एंड कॉल. यू कैन बेग, यू कैन, द कॉन्शियस माइंड सरेंडर and begs to the subconscious mind that please give me something I badly need. जब आपका जैसे कंट्रीज के बीच में there are no man lands between India and Pakistan, there is a broad plot, a line of plot which is neither India nor Pakistan. In every country there are no man land. That is how आपके no man land है conscious mind or subconscious mind में. That is where they meet. Conscious mind goes half the way, subconscious mind comes half the way, and they meet. And sometimes the conscious mind is surprised and in awe what is happening. कि ये वर्ड मुझे कहाँ से मालूम था, ये विजुअल मैंने कहाँ देखा था. वो आपके सबकॉन्शियस ने संभाल के रखा हुआ था, अभी उसे तरस आ गया, दे रहा है थोड़ा थोड़ा. आपकी चाबी खो जाती है and you keep on thinking where I had kept my keys, and then you are talking to somebody else doing something else and suddenly you remember you had put it in the kitchen and you go and it's there. How you suddenly remember that? A part of your subconscious brain is working on the key, and when it has found, it is given to the conscious mind. अरे अचानक मुझे याद आया, अचानक तो मैं नहीं याद आया. Your subconscious was working on it. The same way, when we get an idea, ये idea इस पे poem लिखनी चाहिए, बहुत अच्छा idea है, and then you live with it. It is absorbed by your subconscious mind, and then subconscious देखता है कि मेरे स्टोर में इस काम की क्या क्या चीजें हैं जो मैं इसे दे सकता हूँ अगर उसे रहम आ जाए. तो वो एक दिन आपको प्रोवाइड करता है सामान, and then you feel यार अब लिख सकता हूँ मैं, and then you sit down and you surprise yourself. If a painter doesn't surprise himself, if a poet doesn't surprise himself, that's not good writing, not good painting. This is the process. Beautiful. To my mind. Yeah. मैं समझती हूँ कुछ सवाल लेते हैं पहले. Let's open it up. There must be, I mean, all this must have triggered some questions. Yes, let me just, yeah. Okay. देखिए सबसे पहले इन्होंने हाथ ऊपर किया, तो हम पहले उनसे पूछते हैं. Hello. Javed Saab, that was really truly fascinating, your deconstruction of the creative process. But I'd like to draw your attention to the film domain, which is where your excellence is, respected, highly regarded. What is the role of the director of a film when we come to the creative process? Because the director is now using individual creative creations, patches it together like a quilt and brings it out. So where is the director's creativity to be seen or understood? Well, there are plays of Shakespeare and different directors have directed them, and you can see the difference. If I remember correctly, his name was Peter Hill. I'm not 100% sure, but most probably his name was Peter Hill. He was a young man of 30 years, and the National Theatre, British Theatre, invited him to direct Macbeth. He said, till today, this play has not been directed properly and has not been performed properly.
Every time when I have seen Macbeth, I have seen that it's all about Lady Macbeth. But if Shakespeare meant that, he would have titled Lady Macbeth. Why did he call it Macbeth? Because the main character, the main protagonist is Macbeth. So I'll direct it in a different manner. The same words. He did not change any. Who can change Shakespeare's words? But it was another play. And Lady Macbeth was like some bit actor speaking all those lines. But they were for the benefit of Macbeth, who was in the spotlight. Another example, you see Romeo and Juliet by Zeffirelli. Has anybody seen Romeo and Juliet directed by Zeffirelli? 1 out of 300 is not a bad. That's wonderful. So, you see that. What is the director? They have taken the same play and how he has directed. What is the presence of director between the lines of Shakespeare? How Romeo and Juliet see each other in every play, in every version. Romeo and Juliet meet at a wedding, at a party. They see each other for the first time. Now when they see each other in Zeffirelli's film, how they see it. So that is how they are. I believe that you give the best script to a bad director, he'll see to it that your script doesn't reach people. ये देखिए, जावेद साहब, थोड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ बट ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपके हिसाब से जावेद अख्तर कौन है? दुनिया में there are many ways of going insane. The shortest cut is start thinking, who am I? 101%. मैं क्यों? मैं इस यूनिवर्स में क्यों आया हूं? मेरा पर्पस क्या है? ये the moment you start thinking, ये self-indulgence है, pure self-indulgence, and it will make you mad. आपको बचाएगा नहीं. हर आदमी, आप, मैं, कोई भी जो यहाँ बैठा है, all of us are playing multiple roles. हर आदमी, we are not aware. Like we are not aware that each one of us are paying taxes. हमें नहीं मालूम. आप एक माचिस की डिबिया खरीदती हैं, आप टैक्स देती हैं. आप जाके एक बिस्किट का डिब्बा लेती हैं, आप टैक्स देती हैं. उसमें हर चीज में इनहेरेंटली टैक्स है, हर चीज में. आप अपनी कार में पेट्रोल डलवाती हैं, आप टैक्स देती हैं. हर जगह हमें मालूम नहीं, बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट. द सेम वे जब हम कहते हैं कि एवरीबडी इज प्लेइंग मल्टीपल रोल, तो जरा हैरत से देखते हैं, कौन, मैं क्या मल्टीपल रोल कर रही हूँ? A woman is a mother, a wife. If she's a working woman, then she's a professor or a teacher, or she's in corporate world, she's doing some serious business, she's a friend, she is member of some club, she has certain hobbies. तो एक ही इंसान कितने रिश्तों में और कितने साइड्स में बटा हुआ है, उसको कहना ये कौन सा है? ये माँ है, या ये वाइफ है, या ये नेबर है, या ये उस क्लब की जो मेंबर है जो वहां पर जाके वो खेलती है रमी या ब्रिज, या वो है, सब कुछ है. वो मिलके ही बना है एक इंसान पूरा. इट इज लाइक पीलिंग एन अनियन टू फाइंड द अनियन. ये लेयर ही अनियन है. आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा जब आप लेयर हटाना शुरू करेंगे. तो who is Javed Akhtar is a pompous question, first of all. It's a very pompous. If I think, who am I? I know my humble beginnings. मैंने देखा था इसमें आज से 14-15 साल पहले एक इसमें डिस्कवरी चैनल पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, हाउ अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, हाउ अ स्पर्म रीचेस द ओवरी एंड मीट्स एन एग, and how randomly it fertilizes it. जब आप वो पूरा प्रोसेस देखते हैं कि how many sperms are dying on the way, 11-12 reach the destination, वो भी पागलों की तरह से घूम रहे,
और वो अगर इसकी जगह कोई दूसरा स्पम इस एक्ट को लग गया होता, ये स्पम किसी दूसरे एक्ट को लग गया होता तो कोई और होता। ये तो मेरी बिगनिंग है। अब मैं सोचूं हु एम आई। What is my purpose in this universe? Why I have come here? Shut up! क्या है भाई? We are as random or as planned as a blade of grass. As a blade of grass. आप जाइए मैदान में एक ब्लेड तो, ये ब्लेड ऑफ ग्रास इस यूनिवर्स में क्यों है? अरे बहुत सारी ग्रास है, ये भी है। That is how we are. We are meaningless. We were not planned, it happened. Or between the birth and the death, जो facility is bubble of matter को मिली है, वो बड़ी interesting है. This bubble of matter can taste, listen, see, think. तो ये जो आपको senses है, आपके 5 senses बड़े मजे के हैं. Or by the virtue of the fact that you are born, you get the membership of a club called Human Society, जिसमें कितना पहले जो मेंबर आए और चले गए, टेम्पररी मेंबरशिप होती है, तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है क्लब में. I have not made this electricity, I have not made this table, this microphone, I have not. There were some people before me जो ये करके चले गए. तो decency demands that before I leave, at least I should not create any chaos in this club, and if I can contribute something before checking out, that will be wonderful. ये है बस, और सब बेकार जी. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम. मेरे सिर्फ आपसे 2 रिक्वेस्ट है. एक मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और एक मुझे अपनी लिखी हुई कविता सुनानी है आपको. आप एक काम कीजिए, पहले ही काम कीजिए. मैंने कविता नहीं सुनाई, देखो मेरी शराफत. आप भी तो कुछ ख्याल कीजिए मेरा, कुछ ख्याल आपको भी मेरा करना चाहिए. मुझे कहा था इन्होंने, मैंने नहीं सुनाई, और आपकी तरफ देख के नहीं सुनाई. आपको याद होगा. चलिए सवाल क्या बताइए. सवाल ये है सर कि आप इतने सारे डेकेड से काम कर रहे हैं, 1970s से कर रहे हैं, और आज के बॉलीवुड और तब के बॉलीवुड में कितना अंतर है. मतलब स्टोरी और स्टोरी टेलिंग और रिलेशनशिप्स को जैसे दिखाया जाता है, इमोशंस को कितना डिफरेंस आ चुका है. तो आप बताइए कि आपको फ्यूचर में बॉलीवुड कैसा होगा, कि स्टोरी टेलिंग कितनी चेंज हो जाएगी. चलिए कर लेते. देखिए ये जो बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं, एक तो बॉलीवुड नहीं बोलना चाहिए, मुझे नाम अच्छा नहीं लगता. आप कहिए इंडियन फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. बॉलीवुड क्यों? दूसरे ये कि ये जो है सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट, सॉन्ग्स, ये सब मैनिफेस्टेशन होते हैं सोसाइटी की मोरालिटी और सोसाइटी के एम्बिशन. कि सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की मोरालिटी क्या है, वो झलकती है इन चीजों में. ये लोग जो फिल्में बना रहे हैं, दे आर नॉट मार्शियंस, वो इसी सोसाइटी से गए हैं. उनका एस्थेटिक्स, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक, एंड दे आर डेस्परेट टू प्लीज यू, बिकॉज आप प्लीज होंगे तो उसी में उनकी रोजी रोटी है. सो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे ये सब कुछ चेंज हो जाता है. सिनेमा, राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट. Somebody has said so very wisely that you show me the advertisement of society, I'll tell you everything about that society. Because उससे मालूम होता है what are the norms, what is the morality, what are the aspirations, what are the dreams, what are the ambitions of the society. By looking at the ambition, the advertisement, it caters to that. The same way, जो फिल्म जो चेंज हो रही है, वो सोसाइटी चेंज हो रही तो फिल्म चेंज हो रही है. आपको अगर फिल्मों में कोई गड़बड़ लगती है तो यू विल हैव टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन कि ये क्या हो रहा है यार, कि ऐसी फिल्में चल रही हैं, हमारी सोसाइटी में क्या गड़बड़ हो गई है. आप फिल्म की फिक्र मत कीजिए, फिल्म तो छोटी सी चीज है, सोसाइटी बहुत बड़ी है. ये इस सोसाइटी ने इस फिल्म को अप्रिशिएट किया है, तो सोसाइटी को क्या हो गया है, ये सोचने वाली बात. तो आपको अगर आजकल के फिल्मी गाने और फिल्मी कहानियां अच्छी लगती है
तो इसका मतलब वो आपकी मर्जी की है, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो आपकी मर्जी की नहीं है। आपसे सिर्फ आप नहीं मतलब है, पूरी सोसाइटी चलेगा तो वही जो सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी। देखिए क्या चल रहा है, और अगर उससे कुछ परेशानी होती है तो सोचिए। Sure. So very good evening. Very good evening, everybody, and I'm honored to be a part of this beautiful event. Sir, I'm Anmol Amla. I'm all the way from Jammu and Kashmir, and I really appreciate that you talked about the folk music. You know, I've came out with a music album also, and it was again with the folk itself. And the problem which I faced was again, you know, understanding those lyrics and fusing it with the latest music, latest modern music. So my point is that, sir, I wanted to know how do you relate poetry and music together? Actually, they are together anyway. It's not, you are not bringing some opposite points together. I believe that poetry is the music of language and music is the poetry of sound. Right. तो जब जरा और दूर से बजा दीजिए तो इनको तो ही फील है समथिंग नाइस, इनके लिए जरूरी है। अच्छा है, तो अच्छी बात कही होगी इन्होंने, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये है, तो पोइट्री और म्यूजिक का तो रिश्ता बहुत पुराना है, हमेशा से। और मतलब गालिब who was a great poet undoubtedly. Some people have written, people who are much more educated than what I am, that in 19th century, not all the time, 19th century में वर्ल्ड में उससे बड़ा पोइट नहीं था. He was also in 19th century. उसने अपनी एक गजल किसी को भेजी थी, उसमें लिखा था कि ये गजल जो है वो फला राग में, उससे अपने सिंगर से कहना उस राग में बनाए तो इस गजल का तुम्हें सही मत आएगा. वो राग का नाम लिखा था. तो पोएट्री और म्यूजिक ये शुरू से ही एक साथ रहे, शुरू से ही. जब बेसिक उसका सबसे पुरानी चीज क्या है पोएट्री, वो है फोक सॉन्ग. उससे पुरानी पोएट्री क्या है? इवन जो हमारी ट्रेडिशन है, वो रामलीला हो, वो कृष्ण लीला हो, उसके बाद ये आपने नौटंकी जो गांव का थिएटर था, ये सब में हमारे यहाँ हमेशा से गाने जो है, गाने का मतलब म्यूजिक एंड लिरिक टुगेदर, वो हमेशा से रहे. आप 3000 साल पुराना जो मिर्च कटिका भी ले लेंगे आप, तो उसमें भी आपको म्यूजिक और पोएट्री साथ में मिलेगी. साफ साफ सुना दूं? कुछ तो सुना दिए. जी Question. क्या? Hello sir. So basically, माइक. it's not like हमारे से पहले कोई पोएट नहीं आया वैसे. तो कभी कभी जो हम लिखना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. एक तरीके से हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो एज अ राइटर आपको कभी राइटर्स ब्लॉक या वैसे कुछ नहीं फील होता? हाँ, कभी कभार होता है. ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली आप, हालांकि मुझे फिल्मी गाने लिखने में ब्लॉक नहीं होता क्योंकि वो तो रिपीट होते हैं. वो एक दूसरी तरह का माइंडसेट है. मुझे मालूम है कि इसकी रिकॉर्डिंग 18 को होनी है, ये गाना मुझे 16 तक डिलीवर कर देना चाहिए. आई हैव टू राइट द सॉन्ग फॉर दिस सिचुएशन टू दैट ट्यून. मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिटन टू द ट्यून, नॉट ओनली फॉर अ सिचुएशन. वो अपने अंदर एक आर्ट या क्राफ्ट जो भी कहो, वो मैं लिख लेता हूँ टाइम पे. ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई कि मैं गाना नहीं लिख सका, कभी नहीं. I must have written around 2000 songs. मगर अपनी पोइट्री जो है, जो मेरी अपनी है, जो लिटरेरी पोइट्री, उसमें ब्लॉक्स आते हैं. बिकॉज मैं तब तक लिखता ही नहीं जब मुझे ऐसा न लगे कि ये बात नहीं कही गई है, ये नई बात है, तो मैं लिखते ही नहीं. सर ऑलमोस्ट सारी बातें तो कही गई हैं. जी मतलब देखिए, एक बात बताऊं आपको. क्या नाम है आपका? सिमरन. सिमरन. बैठ जाओ सिमरन. Every person is unique. और वो कैसे? वो जहां पैदा हुआ है, ये जगह इससे पहले थी ही नहीं. यूनिक पोजीशन होती है हर आदमी की.
I was born to a man and a woman जिनका कोई बच्चा नहीं था. I have a brother. वो किसी दूसरी जगह पैदा हुआ है. He is born to a man and woman who had a son. दोनों एक जगह थोड़ी हुए हैं. We have not lived in the same house. I have lived in a house where there was a father, there was a mother and a younger brother. He has lived in a house where there was a father and a mother and an older brother. हर इंसान एक यूनिक सिचुएशन में एक यूनिक जगह पे होता है. हर इंसान. अब अगर आप यूनिक जगह पे हैं and you are looking at this world or the time from a place which is totally new, I am not willing to believe that you won't be able to see something new. Because जहां से तुम देख रहे हैं यहां से तो दुनिया किसी ने देखी नहीं है. ये तो जगह ही नहीं थी तुमसे पहले. तो stop thinking इसने क्या बोला उसने क्या बोला. तुम देखो, तुम सोचो और तुम्हें नई बातें आएंगी तुम्हारे पास. हेलो सर. जी सर इधर. हेलो सर इधर. सलाम सर इधर. भैया देखो बहुत सारे हाथ हैं, एक-एक करके. सर मेरा सवाल ये है कि आपने तमाम पॉपुलर फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स लिखी. कहाँ है? आपने तमाम पॉपुलर फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखी और भारत को उस समय एक नायक के तौर पे एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर नायक मिला. 70 के दौर में उस समय भारत में तमाम तरह की राजनीतिक और कई तरह की उथल पुथल चल रही थी और आपने अभी सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन का बात किया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. तो क्या उस दौर के लिए एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर उचित था और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो किस तौर पर उचित? देखिए अब उचित था नहीं था इसका फैसला तो दूसरों के हाथ में मुझे नहीं करना. लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं कि जब सलीम साहब और मैं जंजीर, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर लिख रहे थे जिसमें एंग्री यंग मैन था तो हमें बिल्कुल इसके सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस का कोई पता नहीं था. हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम वो लिख रहे हैं जो इस सोसाइटी चाहती है. बिल्कुल नहीं. हमको एक कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा और हमें लगा ये ऐसा स्मार्ट और मजबूत कैरेक्टर है, हमने लिखा. और अच्छा हुआ क्या हमें नहीं पता था. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इफ वी वुड हैव नोन that because the society is losing faith in the institutions and because some extra constitutional forces are rising for the first time in independent India, today people have lost faith and they are looking for a vigilante. So let us write of it. हम खराब पिक्चर लिखते हैं. We were the part of that society. We were breathing the same air and we were very fortunate that we were thinking the way most of the people were thinking. And we were not aware that our thinking is in sync with others. We were not aware. But then we wrote what we felt that it is interesting. And others lapped it up because they also had this kind of thinking, this mind. You know, vigilante character was not possible in 1952 or 53, not possible. Because there was faith in the system. There were hope. They were believed that everything will go right. But when they saw that things are not going right, when they saw there is no injustice and what is happening and who is calling the shots, that is where an average human being, average citizen fantasized. You fantasize many things, never do that. That I have to get justice or no. Nobody is going to give me justice. And that is where such atmosphere, a vigilante, an angry young man, both born. Hello, sir. This. हेलो सर. नमस्ते सर. सर मैं श्रुति. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है बस कि आप यंग जनरेशन को जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे और एक कलाकार क्या होता है आप प्लीज बताइए. और क्योंकि यहाँ पे हर कोई लिखता होगा कुछ ना कुछ तो और कुछ ना कुछ बनाता होगा तो आप क्या एक इंस्पिरेशन क्या एक चीज उनको बताना चाहेंगे कि
अपना काम करते रहें और पीछे ना हटे। बस हो गई बात। चलिए, थैंक यू फॉर गिविंग माय आंसर। सर फ्रॉम यू। थैंक यू। यही है, अपना काम करते रहो, पीछे बस। इसके बाद तो बाकी सब ऐसे ही होगा, वर्बोसिटी, बात यही है। हाँ साहब। Good evening, sir. So you said good vocabulary leads to clearer thinking, and if you take it to this logical conclusion, clearer thinking should lead to more critical thinking. Just a second. If you have a good vocabulary, it doesn't mean you will have clearer thinking. You see, all the tigers are animals, but all the animals are not tigers. Same way, people who can think clearly have big vocabulary. But everybody who has big vocabulary is a clean thinker. No, not necessarily. अब बोलिए। So I've seen plenty of your debates. I don't want to say with whom. I've seen plenty of your debates, and I see the person on the other side is really articulate, and I keep wondering, do they really believe the nonsense they are speaking, or are they just duping the audiences? Like, they're very articulate. Now, people get impressed by verbosity and anything that they don't understand completely. You see, everybody gets intimidated by things which he or she doesn't understand completely. This is the foundation of modern poetry and modern art. ये याद रखना. Nobody has the guts to say that emperor is not wearing anything. तो वो चल जाता है फ्रॉड, लेकिन अल्टीमेटली नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट पॉसिबल. अल्टीमेटली क्या है, वी ऑल्सो डोंट हैव न्यूट्रल माइंड. वी गो टू लिसन टू अ स्पीच और टू अ लीडर विद अ सर्टेन बायस माइंड, प्री कंसीव्ड नोशंस. वी हैव मेड अप अ माइंड. वो हम वहां जाके नहीं बनाया हमने, वो पहले से था कहीं. मुझे ऐसा लगता है, देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जैसे आप कम्युनलिज्म कहते हैं, एक्चुअली द राइट वर्ड इज सेक्टेरियनिज्म, मगर हमारे यहाँ उसको कम्युनलिज्म कहते हैं. मेरा ऐसा बिलीफ है कि 3 तरह के लोग कम्युनल होते हैं. 1, जिनके फादर ने उन्हें बताया है कि बेटा ये जो लोग होते हैं बड़े खराब लोग होते हैं. ना फादर, मोस्ट ऑफ द फादर आर द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन द आईज ऑफ द सन्स, पर्टिकुलरली सन्स. तो उनका बाप तो गलत हो ही नहीं सकता. His father was a great man who is a great man, not appreciated by the world. मेरे फादर तो अब अगर वो ये मान ले कि ये लोग बुरे नहीं होते, तो इसका मतलब मेरा बाप गलत था. मेरा बाप तो गलत नहीं हो सकता, अब तो ये बुरा ही है. एक. दूसरे वो लोग होते हैं जो एक तरह के एग्जिस्टेंशियल फेलियर्स होते हैं, जो काम करना चाहते थे नहीं कर पाए. दूसरा जो भाई है या जो बहन है वो आगे निकल गए बहुत, जो घर वाले लुक डाउन करते हैं, दोस्त भी जरा समझे ही कर इसे समझे, तो कहीं इज्जत नहीं मिल रही है. एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है विच कॉजेस ट्रेमेंडस फ्यूरी एंड वेनम इनसाइड द पर्सन. तो अब ये उन लोगों पे तो निकाल नहीं सकता जो जानते हैं कि ये निकम्मा है. तो he joined the club where people are allowed to take out their venom. कि वहां पर सब एक साथ मिलके वेनम निकालेंगे. क्राउड में होऊंगा तो सेफ भी रहूंगा और मेरा जो पॉइजन है वो भी निकल जाएगा. तो he starts hating some people because he cannot afford to hate who are really the cause of his displeasure and unhappiness. The third are neither taught by their parents nor their existential failure. They are pure opportunists. They believe that this is the gravy train, and to catch this at the moment, this is the ideology which will suit me. This ideology will take me forward. अच्छा, ये तीनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, थोड़ा सा वो हो, थोड़ा सा वो. कहीं प्रोपोर्शन इसका ज्यादा हो, कहीं उसका प्रोपोर्शन ज्यादा, परसेंटेज ज्यादा. इन तीनों के बिना कोई आदमी सेक्टेरियन या कम्युनल नहीं हो सकता. बिकॉज कम्युनलिज्म जो है वो बिसाइड बीइंग नॉट अ गुड एंड प्लेजेंट थॉट, इट इज स्टूपिड. बेवकूफी का काम है.
हाउ कैन आई डिसाइड कि पूना में रहने वाले जो लोग हैं ना बड़े कंजूस होते हैं? अरे पूना में हर तरह के लोग रहते भाई। यार ये जो होते हैं ना, ये मेरठ में बातें बहुत करते लोग। अरे भाई बहुत चुप भी रहते होंगे। You turn a large number of people into a monolith, which is wrong. That is how you treat communities also. Monolith. No community is a monolith. In every community, all kind of people exist. Every community of the world. साहब आपको तो मालूम है ये लोग ऐसे ही होते। ये लोग कौन से लोग? अलग अलग तरह के लोग हैं, आप जाके देख लो। अच्छा, दूसरी एक अजीब बात मुझे कम्युनिटी में बड़ी अम्यूजिंग लगती है। We are not against those people whom we know. अगर मैं मुसलमान हूं तो वो हिंदू खराब नहीं है जो मेरा दोस्त है, वो तो अच्छा आदमी है। वो हिंदू बुरे जिन मैं जानता नहीं। ऐसे ही है जो मुसलमान दोस्त है आपका, यार ये तो अलग ही है, ऐसा नहीं। तो फिर कौन से मुसलमान खराब है जिन्हें मैं कभी नहीं मिला हूं? वो खराब है सब। वो नहीं अच्छे लोग होते जिनसे मैं मिला नहीं हूं, जिन्हें मैं नहीं जानता। जिन्हें मैं जानता हूं तो ठीक है, नॉट बैड। ये इट्स अ स्टूपिड आइडिया टू टर्न कम्युनिटीज और नेशंस और कंट्रीज इनटू मोनोलिथ। यार अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका में लाखों लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इजराइल में लाखों लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है, मिडिल ईस्ट में करोड़ों लोग हैं जो उसके खिलाफ है, जेलों में पड़े हुए हैं, फिर भी प्रोटेस्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ईरान में, किसी भी जगह देखो। बट वी टर्न नेशन में। तो अभी कह रहा था, हम लोग बैठे थे, मैं सब बिलीव करता हूँ और मैं आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट, मगर मैं जेन्युइनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि आज पाकिस्तान में तो रेफरेंडम करा दो, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी विल वोट के यार इंडिया में वापस जाना। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बट वी आर अनअवेयर ऑफ देम। वी आर अवेयर ऑफ द मुल्लाज, वी आर अवेयर ऑफ द आर्मी, वी आर अवेयर ऑफ द टेररिस्ट, नॉट ऑफ सो मेनी पीपल हु लव, एडमायर, दे आर इन ऑफ ऑफ इंडिया। यार इंडिया देखो कहां से कहां पहुंच गया, हम लोग वहीं रह गए। उसके अंदर ये हसरत है, यार क्या बना दिया है इन्होंने, हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं। हम जब पाकिस्तान बोले थे तो सब हो गए। दैट इज रॉन्ग। Hello, good evening, sir. My question is same along the religious lines. Like I followed your debates, and like I think it won't be wrong to say that your beliefs are around atheism, and personally I resonate with the same feeling. But like but publicly, if I have to make a statement, as long as I am keeping my name is Arup Khanna. As long as I am keeping my name, I cannot say something which is against my representation, because that would be like enjoying and reaping the benefits of a certain religious belief and at the same time opposing it. So my question was same to you, like your belief may be atheistic, but your name to a common man, that would come out to be Okay, so you suggest a good name, I'll keep it. No, honestly, sir. No, I mean it. Sir, बोलो मेरा नाम बोलो. sir, you ये are मैं रख लूं, because I don't believe in any religion. So give me a name which doesn't belong to any religion. दे दो. हाँ? Who? A2D2 हो सकता है. That is possible. I appreciate that. सर आप पोएट हैं, So would you suggest that I should keep name A2D2? सर आप पोएट हैं, आप तो कोई भी नाम रख लीजिए। नहीं मेरे भाई, एक साहब गए थे नौकरी मांगने, तो जो नौकरी देने वाला था उससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने अपना नाम बताया, तो नौकरी देने वाले ने कहा बड़ा अच्छा नाम है, कल सर आप रख लीजिए मैं दूसरा रख लूँ। आपको पसंद है आप रख लीजिए। तो वो जो दिखता क्या है कि ये नाम जो है कहते ये मुसलमान का नाम है जावेद अख्तर। अच्छा, तो ये तो 1300 साल पहले का, 1400 साल पहले का मजहब है। उससे पहले वर्ड जावेद था कि नहीं था? अख्तर था। फारसी अरबिक नेम? नो, दीज आर पर्शियन वर्ड्स। पर्शिया में तो बहुत बाद में आया इस्लाम। तो ये आपने ये कैसे ओन कर लिया कि इस्लाम का लैंग्वेज होती है मजहबों की? कोई हमने जो
जो लोग मुसलमान हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम चेंज किए थे क्या? नहीं, उनका पहले भी वही नाम था। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। मिसाल के तौर पे उमर शरीफ आप तो समझते होंगे मुसलमान होगा, बट ही वाज नॉट, ही वाज अ क्रिश्चियन। उमर शरीफ एक पर्शियन का नाम है। ये हमारे मुल्क में है कि सूरज हिंदू है और आफताब मुसलमान है। ये पागलपन यहाँ है, बाकी जगह नहीं है ऐसा। तो ये जो है, आप नाम, अब नाम से जो, या तो बच्ची ने जो बोला ए टू डे टू रख लूं मैं, वरना मैं जो भी नाम रखूंगा वो कहेंगे साहब ये फला धर्म का। अब एक धर्म में तो मैं गलती से, मेरी तो गलती नहीं, मैं यहाँ पैदा हुआ, बाकियों को मैं खुद एक्सेप्ट करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर आप एलॉन मस्क की तरह भी रख सकते हैं नाम, आप एलॉन मस्क की तरह भी अपना नाम रख सकते हैं जैसे। एलॉन मस्क जो है, एलॉन मस्क मुसलमान लगता है आपको नाम से? नहीं लगता ना, तो इससे मालूम हो गया मुसलमान तो नहीं है और हिंदू भी नहीं है। सर उसके जो बेटे का नाम है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी का जो नाम है, इट्स नॉट अ मुस्लिम नेम, हर नेम इज जोया। Zoya is a Russian name. She was an underground resistance girl in Leningrad when there was a siege of 3.5 years by Nazis. And she was caught. There was an underground press जिसमें वो काम करती थी. And they killed her by sewing her limbs. And she did not tell them कि कहाँ छपता है ये. तो उसका वहाँ स्टैचू है अभी भी। लेनिनग्राड का नाम तो लेनिनग्राड ही नहीं रहा, वो लड़की का स्टैचू है। And I had read in my school days about her. So I had decided that if ever I'll have a daughter, I'll name her Zoya. अच्छा, मेरा भी आपको नाम बताऊं। मेरे नाम का उल्टा चक्कर है। I was born in Gwalior, as I told you earlier. So my father was a card holder of Communist Party. तो उनके 2-3 दोस्त आए मुबारकबाद देने के, भगवान ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। तो बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि भाई सुनो यार, आप बैठिए एक मिनट अभी, कि वो एक मुस्लिम में ट्रेडिशन होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गाने में कुरान सुनाते हैं, अजान देते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। तो तुम क्या कर रहे हो? तो ये लुक्ड अराउंड, तो एक के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, बोले ये दे दो, ये रियलिटी रियल। तो he took that communist manifesto, my father, पहले दिन का बच्चा, उसके कान में workers of all the nations, for you have nothing to lose but your skin, ये मेरे कान में था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई बच्चे का नाम क्या रखोगे? तो एक दोस्त ने कहा जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो तुमने एक नज्म लिखी थी, पोएम थी तुम्हारी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, ये तुम्हारी पोएम में था, तो तुम इसका नाम जादू रख दो। तो मेरा नाम जादू पड़ गया। और अभी भी मेरे घर के लोग और मेरे पुराने स्कूल फ्रेंड्स और जो भी फैमिलीज जो बचपन से मुझे जानते, सब मुझे जादू ही कहते हैं। नोबडी कॉल्स मी जावेद। तो जादू रख दिया ना। अब भाई 2-2.5 साल का जब मैं हो गया तो अगले बच्चे को वहाँ किंडरगार्टन भेजो ये, तो लोगों ने कहा यार वहाँ जादू नाम लिखाओगे तो he'll become a butt of joke, तो इसका नाम कुछ तो रखो। तो माय नेम वाज जावेद रखा गया बिकॉज ऑफ जादू, के से मिलता जुलता कुछ रख दो यार। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ माय नेम। आप बोले तो मैं वापस जादू रख लेता हूँ, A2D2 से तो बेटर हो। Pranam sir. Pranam. जी, I would like to understand. योर माइक। I'm trying to be. मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसने वाली बात नहीं है, प्लीज। वो ये है कि बात, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ मैं, और सोच रहा हूँ, मतलब मेरा प्रश्न एक सरल प्रश्न है, वो ये है कि नजरुल इस्लाम जी ने जी एक बारी रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कहा कि आप जो पोइट्री लिखते हैं वो आप ऐसे पोइट्री लिखते हैं जैसे कि आप अपने खंजर या तलवार से मेरी दाढ़ी बना रहे हैं। उसके पीछे क्या सबकॉन्शियस चला होगा, क्या सबकॉन्शियस, क्या समझ में नहीं आता। मैं नहीं जानना चाहता हूँ। आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग मी विद नजरुल इस्लाम। ये सवाल आप उनसे पूछते हैं,
कहे उन्होंने दिया, सुना रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने भी नहीं पूछा कि भाई क्यों कह रहे हो ऐसा, तो इसमें मुझे आप क्यों डाल रहे हैं इतने दो बड़े आदमी। आपसे हाँ? इस प्रश्न के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं। सुनाइए। मेरा अपना ही है। वो ये है कि कभी कभार मुझे कुछ कहने को जी चाहता है। कभी कभार मुझे कुछ कहने को जी चाहता है। कभी कभार मुझे कहने को जी चाहता है, पर साला आइडिया ही कोई नहीं आता है अपन को। दूसरी लाइन में सुने, आप जरा जोर से बोलिए माइक पर। मैंने कहा कभी कभार जब मेंटल ब्लॉक हो जाता है, कभी कभार मुझे कुछ कहने को जी चाहता है, पर साला आइडिया ही नहीं कोई आता है अपन को। सेकंड लाइन, चलिए पहली लाइन अच्छी है, और कभी फिर मिला तो दूसरी भी बताइए। धन्यवाद। बैठिए। हाँ चलिए, अरे प्लीज प्लीज प्लीज। Okay, Javed साहब, मेरा प्रश्न इसी से, I'm not going into philosophy, literature, etc. etc. I am asking you कि 20 की एज में आप लखनऊ से बॉम्बे आ गए, आप फिल्म ज्वाइन करना चाहते थे, फिल्म स्टार या डायरेक्टर या जो जिस लाइन में आप जाते थे, पर आपने कविता और शायरी लिखनी कब शुरू की? मैंने कविता और शायरी लिखना उस एज में शुरू की जिस एज में आमतौर से लोग छोड़ देते हैं लिखना। टीन एज में शुरू करते हैं लोग पोइट्री, और मोस्ट ऑफ द पोएट्स, इवन इफ यू लुक एट पोएट्स लाइक शेली, कीट्स, बिग पोएट्स इन द वर्ल्ड, इन इंडिया आल्सो, उनका मोस्ट ऑफ द जो आउटपुट है इज फ्रॉम 20 to 30। ये जो है इसमें सबसे ज्यादा उनकी पोइट्री होती है। उसके बाद बहुत कम पोइट हैं जो सस्टेन करते हैं लेटर एज तक, और वो पैशन कम हो जाता है विद एज। मैंने शुरू की मैंने बस परहैप्स 30-31, इस उम्र में तो छोड़ देते हैं लोग, एंड दैट इज व्हाई सरप्राइजिंगली मेरी जो पोइट्री है उसमें रोमांटिक पोएम बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन बहुत कम। तो बिकॉज उस एज तक फिर जाके आपके कंसर्न्स कुछ और हो जाते हैं और कुछ और बातें सोचने लगते हैं आप, तो मैंने तब शुरू की। लेकिन हैरत की बात है कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरू की। आई कम फ्रॉम अ फैमिली with my last 7 generation are of poets and known poets. My maternal uncle was one of the biggest poets of his time. मैं जब 14-15 साल का हुआ था तो मुझे हजारों शेर दूसरों के याद थे। आज भी मैं आपको दूसरों की पोएट्री कई घंटे तक सुना सकता हूँ, इतनी मुझे बाय हार्ट है। और तब भी थी, कॉलेज डेज में भी मुझे बहुत पोएट्री याद है लोगों की, लेकिन मैंने खुद नहीं लिखी थी। उसके 2 रीजन थे। एक तो ये कि अनअवेयरनेस गिव्स यू करेज। अगर आपको मालूम है कि सचमुच अच्छी पोएट्री होती क्या है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हम तो यार कुछ भी इसके सामने नहीं लिख पाएंगे। तो उसने बहुत दिनों तक लिखने नहीं दिया। दूसरे क्या होता है, बाप पोएट, मामा पोएट, चाचा पोएट, तो ऐसा लगता है काम तो बड़ों के हैं, हम क्यों करें। तो ये जब सब मर गए तब मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, सेकंड कि आप कहते हैं आपने लव के बारे में नहीं लिखा। एक तो नज़्म आपने लिखी थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो उसमें तो आपने बहुत एग्जाम्पल्स दिए थे विच आर फैंटास्टिक। तो आपसे वो नहीं, मैं कहूँगी कि कुछ आप अपनी चीजें कुछ सुना दीजिए। वो गाना था, सिचुएशन थी, उस पे गाना लिख दिया, और वो कई लोगों को ऐसा ख्याल हुआ कि शायद मेरे बारे में लिखा है। तो मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर नहीं की। और अभी भी दुनिया में 6-7 ऐसी हैं जिन्हें ये बिलीव है कि 100% ने मेरे बारे में लिखा है। किसी के बारे में था? वो सिर्फ डेट पे गाना देने के बारे में था। वो रिकॉर्डिंग से पहले गाना देना बस। वो एक जो होता है, ये जो आर्टिस्ट होता है ये नार्सिसिस्टिक भी तो होता है ना। तो वो जब काम कर रहा होता है, अरे यार क्या मैं
इतनी सिमलीज नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो सिमली दे रहा है, तो वो एक्चुअली पैटिंग हिज ओन बैक। उसे न किसी का ख्याल है कि कौन लड़की कौन कौन, मैं लिख रहा हूँ और मैं लिखूंगा तो ऐसी सिमलीज दूंगा। उसमें मैं जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी। ये भी होता है कि आप अपनी लिटरेरी प्रावस दिखा रहे हैं। चलिए अब आप कहते हैं तो एक छोटी पोएम सुनाता हूं, लंबी का तो समय नहीं है। अब रोमांटिक की बात हुई तो रोमांटिक की पोएम से शुरू करता हूं। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, यही सही है, दिस इज द प्रॉपर थिंग टू डू। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। आफ्टर ऑल यू आर अ रियलिटी, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का यह आलम मैं क्या कहूँ, कमबख्त भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध, वो एक रब्त जो हमें कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। और एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ, इसका टाइटल बहुत डरावना है, आप डर जाएंगे, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। आसारे कदीमा, it means ancient relics। जो रेलिक मिलते थे मोहनजोदारो में, आपको एक मूर्ति मिल गई, एक बर्तन मिला टूटा हुआ, एक ये मिला, कॉइन मिला, ये क्या आपको होता है कभी कोई सिविलाइजेशन थी यहाँ, अभी ये सब चीजें तरह तरह थी मिल रही। एक पत्थर की अधूरी मूरत, काली चांदी के अजब से जेवर, चंद तांबे के सिक्के और कुछ टूटे हुए कांसी के बर्तन। एक सहरा, एक डेजर्ट में मिले जेरे जमीन अंडरग्राउंड। लोग कहते हैं कि सदियों पहले आज सहरा जहां डेजर्ट है, कभी एक शहर हुआ करता था। और मुझको ये ख्याल आता है किसी महफिल, किसी तकरीब, किसी महफिल में सामना तुझसे मेरा आज भी हो जाता है। एक लम्हे को बस एक पल के लिए, जिस्म की आंच, उचटती सी नजर, सुर्ख बिंदिया की दमक, सरसराहट तेरे मलबूस की कपड़ों की, सरसराहट तेरे मलबूस की बालों की महक, बेख्याली में कभी लम्स का नन्हा सा फूल टच का, कहीं हाथ जरा सा हाथ पे लग गया, कंधा लग गया, बेख्याली में कभी लम्स का नन्हा सा फूल, और फिर दूर तक वही सहरा कि जहां कभी एक शहर हुआ करता था। आप ये वाली बोले जो मुझको जला रहे हैं। अब आपको एक आखिरी पोएम सुना देता हूं, इसलिए कि आप लोग का पेशेंस जो है, बल्कि उधर 2-3 का तो टूट चुका है, वो जा रहे हैं। ठीक है भाई, आई डोंट ब्लेम यू। हम होते आपकी जगह हम भी चले जाते। ठीक है, उन्होंने सारा ब्लेम बच्चे पे रख दिया। तो वक्त, कमाल ये बात है कि whatever is around us, with us all the time, we don't watch it, we don't think about it, we take it for granted. Time, कौन है जिसका टाइम नहीं है, जिसके चारों तरफ? But what is time? ये है क्या? We never think that. ये पोएम उसी पे है। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहां था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है? कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाकई हादसे तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every
joy, every sorrow, every pain, every pleasure. ये वाक़ई हाथ से तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये ज़हन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, all the feelings, all the emotions, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहां है और अभी उछल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो इस एक लम्हे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो इस एक लम्हे में, सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हो। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है सच हो कि सफर में हमें गुजरते हमें, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। Brilliant, brilliant. आप देख रहे हैं लोग बैठे ही हैं और कुछ खड़े हैं कब से। यस, मैं I'd like to invite Mrs. Kiran Nada to give a vote of thanks for this memorable evening really with Javed Sahab. जिनके सवाल रह गए कभी ना कभी पूछ लेंगे। First, I would like to start by thanking Javed for such a wonderful Oh, yeah. And this is okay. I'd like first to start by all of you giving a big hand to Javed Sahab. It has been such a wonderful evening for us to get pearls of wisdom from him in different languages and different words, and each of us has related to it in different ways. So I would thank everyone for being here and being with us to enjoy this evening, which is really special. Out of various presentations that we've done at KNMA, I think this is one of the most special. So thank you very much, Javed Sahab. Thank you, everyone. And thank you all my team. Sorry. Thank you all my team for putting this together for us. Thank you all. Thank you. Okay.
है आप